علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی بھارتی تسلط اور ظلم و جبر سے نجات دے، آمین۔ شیخوپورہ میں آٹے کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ ایک ماہ کے دوران 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 200 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں بھی آٹے کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ ایک ماہ کے دوران 20 کلو تھیلے پر 200 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ آٹے کا 20 کلو اور 10 کلو والا تھیلا بلیک میں فروخت ہونے لگا۔ مہنگائی میں پسی عوام کی چیخیں نکل آئیں۔ بعض دکاندار 20 کلو والا تھیلا 1200 روپے اور 10 کلو والا تھیلا 600 روپے میں فروخت کرنے لگے۔ فیکٹری سے زیادہ ریٹ ملنے پر آٹا مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ منڈی میں گندم کی قیمت 2000 روپے فی من ہونے کے بعد فیکٹری مالکان نے آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کیا ہے۔ جی میں یہاں سے آٹا لینے کے لیے آیا تھا، مل کے سامنے کھڑا ہوں، مل میں سے آٹا نہیں مل رہا اور دکانوں پہ گیا ہوں، وہاں پہ تو آٹا ہے ہی نہیں۔ پہلے ادھر ٹرک وغیرہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے لیکن اب ٹرک بھی کوئی نہیں نظر آ رہا۔ آٹے کا جڑا نا جی بہت بحران ہے اس ٹائم، تو مزدور آدمی واسطے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ٹرکاں تے ویکھیا ٹرک بھی نہیں کوئی لبا جی، کتے آٹے دا میلے چ آیا تے اتوں بھی کوئی نہیں ملیا ہے جی، تے ایک مہینے دے وچ 200 روپیہ مہنگا تھیلا ہو گیا۔ اسی مزدور آدمی جڑے نے ساڈے واسطے بہت پریشانی بنی ہے جی، بچے بھی بھوکے مرن ڈے نے جی۔ مل مالکان اپنی مدد آپ کے تحت منڈیوں سے مہنگے داموں گندم خرید رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ مہنگے داموں گندم فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی تو آٹے کا مصنوعی بحران نہ پیدا ہوتا۔ اعلیٰ کام ذمہ داران کے خلاف فوری نوٹس لیں اور عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے وجیاوالا کے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ تجمل قریشی کی رپورٹ۔ ایک طرف گرمی کی شدت میں اضافہ تو دوسری طرف وجیاوالا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے، جس پر وجیاوالا کے شہری میپکو میاں چنو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ احتجاج کرتے ہوئے وجیاوالا کے شہریوں نے سچ نیوز کو بتایا کہ میپکو میاں چنو کی طرف سے وجیاوالا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پچھلے 2-3 ماہ سے جاری ہے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ گرمی کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں اور متعدد لوگ گرمی کی وجہ سے ہسپتالوں میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ بجلی کی مسلسل بندش پر کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے جب سے گرمی سٹارٹ ہوئی ہے یہ ہو رہی ہے۔ پہلے ان کا یہ بہانہ تھا کہ ہم جناب لائن چینج کر رہے ہیں، 25 تاریخ جو پچھلے ماہ کی گزر چکی ہے اس تک ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن عید کے 2-3 دن سکون رہا ہے، اس کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے نا واپڈا والوں کی نائل ہی ہے، یہ جو واپڈا کے لائن مین ہے نا ان کو ہم کال کرتے ہیں، کوئی فنی خرابی ہو جائے تو وہ جو ہے نا اپنا نمبر بھی بند کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا ہماری کسی تیسری چوتھی دفعہ احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے نا مذاق بنایا ہوا ہے۔ مزید بتایا کہ میپکو میاں چنو کو متعدد بار غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں مطلع کیا لیکن تاحال لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ انہوں نے میپکو خانے وال کے اعلیٰ افسران سے وجیاوالا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ تجمل قریشی، سچ نیوز، وجیاوالا۔ سناما بازار میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں اور خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منیر حسین کی رپورٹ۔ سناما میں مین بازار اور بخاری روڈ کا سیوریج سسٹم بالکل ناکارہ ہو گیا۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی بازار اور گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں اور دکانداروں کو اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھائی کئی دفعہ جو ہے نا ہم نے ریکویسٹ کیا ہے میونسپل کمیٹی میں جا کے، یہ جو گندا نالا گزر رہا ہے یہ پانی کی وجہ سے یہ اوور فلو کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری بازار میں جو ہے نا یہ گٹر کا پانی ہوتا ہے، سارے محلے دار اور نمازی جتنے بھی گزرتے ہیں پریشان ہیں۔ نکاسی کا برا حال ہے، پانی باہر نکلنا پایا روڈ مارکیٹ تے اصل دکاندار مارکیٹ والے بہت سارے پریشان ہیں۔ میونسپل کمیٹی دفتر تے آتے ہیں، کوئی عملہ آتا نہیں، صفائی نہیں کرواتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی سناما کی انتظامیہ کا کہنا ہے جلد بخاری روڈ کی سیوریج سسٹم کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ بخاری روڈ سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ ہی دن سے چل رہا ہے، پہلے یہ مسئلہ حل کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ، تو اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم اس وجہ سے ہیں کہ سیوریج کے ہم نے جو ہے وہ سسٹم کو تھوڑا چینج کیا ہے، اس کی رخ کو چینج کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہائٹ کا کچھ پرابلم آ رہا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اور میونسپل کمیٹی سناما کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بخاری روڈ کا سیوریج کا مسائل مستقل طور پر حل کیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹادو اور میونسپل کمیٹی سناما کے اعلیٰ حکام کو مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد نالے کی صفائی کرائی جائے تاکہ یہاں کے سیوریج کا نظام صحیح ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سناما۔
राजनपुर के मोहल्ला कमांगरा में सीवरेज का पानी जमा हो गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मलिक तुफैल की रिपोर्ट। राजनपुर में शहर का सीवरेज सिस्टम ठप हो गया। सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने की वजह से मोहल्ला कमार निगरा की गलियां तालाब जबकि गंदा पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि सीवरेज निज़ाम को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मुतअद्दिबार इंतजामिया अफसरान को कह चुके हैं, लेकिन दिलासे देकर टाल दिया जाता है, जबकि सीवरेज का गंदा पानी गलियों और घरों में जमा होने से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़ राजनपुर। शेरगढ़ के तारीखी सुल्तान शाह कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा लिया। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं उसामा अली से। जी उसामा। के कब्रिस्तान सुल्तान शाह का शुमार पंजाब भर के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में होता है। इस कब्रिस्तान की सरकारी तौर पर सैकड़ों एकड़ अराजी मुख्तस की गई है, लेकिन कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान पर भी अपने डेरे जमा लिए हैं। लोगों ने कब्रों को मस्मार करके ऊपर अपने अहाते कायम कर लिए हैं। इसके अलावा लोगों ने कब्रिस्तान में मवेशी बांधना और कूड़ा करकट फेंकना भी मामूल बना रखा है, जिससे अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी तौर पर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज, शेरगढ़। पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई, जबकि सब्ज हिलाली परचमों से तैयार करदा मलबूसात और दीगर साजो सामान के स्टॉल्स बाजारों में सज गए। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी जश्न आजादी की तैयारी जोशो जज्बे के साथ जारी है। पेशावर की कदीमी किस्सा ख्वारी बाजार में इस दिन के हवाले से स्टॉल सज गए, जिस पर सब्ज हिलाली परचमों से तैयार करदा मलबूसात, बैचेस, टोपियां और दीगर साजो सामान को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। और जश्न आजादी खुशी से मना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगा कि हम जिस हुकूमत ने जो तरीका बनाया हम उसी तरीके से बना ले। अल्लाह एक तो कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में एक वो फैला हुआ था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा जोश खरोश से मनाएं और 14 अगस्त अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीदेंगे और इंशाल्लाह पूरे जज्बे से मनाएंगे इंशाल्लाह। स्टॉलों पर मौजूद खरीदारी में मसरूफ शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद भी जश्न आजादी का दिन जोशो जज्बे से हर साल की तरह इस साल भी मनाएंगे। इस साल बहुत महंगाई है, पिछले साल से बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे ये महंगाई कम से कम हो जाए तो बेहतर है। 14 अगस्त के दिन को मनाने के लिए शहरी पुरअज़म और पुरजोश है। महंगाई के बावजूद भी पेशावर के शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। 14 अगस्त के करीब आते ही आरिफ वाला के बाजारों में लगे झंडे, झंडियों और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा भट्टो। आरिवाला में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से बाजारों में लगे झंडे, झंडियों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। मर्दों, खवातीन और बच्चे सभी जज्बा हुब्बुल वतनी लिए सब्ज हलाली परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। अपने बैज वगैरह, झंडे वगैरह बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए आए हैं और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मुल्क अता फरमाया। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। लेने आए हैं जो 14 अगस्त जोश जज्बे से मनाई जा रही है। माशाल्लाह बहुत खुशी है, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने घरों के लिए सजाने के लिए बैजेस वगैरह लेने के लिए आए हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ज्यादा खूबसूरत अंदाज में अपने घर को सजाए। कोरोना खतरात के बावजूद यौम आज़ादी मनाने का आवाम का जोशो जज्बा दीदनी है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। चिन्योट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं और शहर भर में कौमी परचमों समेत दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। अब्दुल रहमान गलियार की रिपोर्ट। पूरे मुल्क की तरह जिला चिन्योट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में जिला चिन्योट के बाजारों, चौकों, गलियों में झंडे, झंडियों, बैजर्स और बरकी कमकमों के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इन स्टॉल का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं 14 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में हम दुकानों पर आए हैं। हम झंडियाँ और झंडे खरीदेंगे और अपने घरों को सजाएंगे और 14 अगस्त धूमधाम से मनाएंगे। 14 अगस्त के लिए हम आए हैं, झंडियाँ खरीदेंगे और 14 अगस्त हम धूमधाम से मनाएंगे। हम 14 अगस्त की तैयारी के लिए आए हैं, तो झंडे खरीद रहे हैं ताकि हम अपने घरों को सजा सकें और 14 अगस्त धूमधाम से मनाएं। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाते हैं।
इसी रवायत को बरकरार रखते हुए जिला चिन्योट के शहरियों ने भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी कर रखी हैं। शहर की सरकारी इमारत समेत दीगर सबज हलाली परचम से सजा दिया गया है ताकि 14 अगस्त के दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कल्यार, सच न्यूज़ चिन्योट। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी यौम आज़ादी को कश्मीरी भाइयों के नाम करने का इरादा कर लिया। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी झंडियां, बैजेस, टी शर्ट, कैप्स वगैरह खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। कमसन बच्चे से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस साल 14 अगस्त यौम आज़ादी की खुशियां अपने कश्मीरी भाइयों के नाम करते हुए कश्मीरी झंडा अपने घर पर लहराने का इरादा कर रखा है। मैं 14 अगस्त पे कश्मीरी झंडा खरीदने आया क्योंकि मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ 14 अगस्त मनाना चाहता हूँ। मैं अपने घर पे कश्मीरी झंडा लहराऊंगा। दीगर शहरियों ने भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर इस साल यौम आज़ादी को सादगी से मनाने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जश्न आज़ादी जो है 14 अगस्त साल से मनाते आ रहे हैं और इस दफ़ा मैं पूरी कौम से अपील करूंगा कि सादगी के साथ और ये जो 14 अगस्त है ये कश्मीरी भाइयों के नाम करें। 14 अगस्त हम हर साल बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं। इस साल हम सब पाकिस्तानी भाई जो 14 अगस्त की खुशियाँ कश्मीर के नाम करते हैं, इसका मकसद है कि हम जो ये जश्न सादगी से मनाएंगे। जो कश्मीर भाई 1 साल से लॉकडाउन में है, इंशाल्लाह अगले साल हम सब ये कश्मीर आज़ाद होगा, उसके साथ हम पूरे जश्न के साथ इंशाअल्लाह ये जश्न आज़ादी 14 अगस्त दोबारा मनाएंगे। जब 1 साल से कश्मीरी भाई कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए मुकम्मल लॉकडाउन में किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो ऐसे हालात में यौम आज़ादी के मौका पर बारगाह खुदाबंदी में उनकी आज़ादी के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है कि आइंदा साल कश्मीरी भाई और पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी एक साथ मनाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़। लोअरदीर में भी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोअरदीर के शहरी 73वीं यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारी शुरू की है। लोअरदीर के जिले हेडक्वार्टर बाजार तेमरगरा समेत खालराबाद, जंदूल, तालाश और चकदरा के बाजारों में कौमी परचम, मुख्तलिफ किस्म के बेज के स्टॉल सजाई गई है। क्योंकि इस दिन हमारे जान का टुकड़ा आज़ाद हुआ था, इसकी वजह से हम यहाँ आज़ादी से रह रहे हैं। इसलिए जब भी 14 अगस्त आते हम यहाँ सामान के लिए आते, हम झंडा खरीदते, बेज खरीदते अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। आज़ादी के सामान के लिए हमने बेज खरीदे और ये टोपी भी खरीद लिए। लोअरदीर के शहरी यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम, बेज और केब्स खरीदने में मसरूफ है, जबकि कौमी परचम से अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को सजाए हुए है। लोअरदीर के शहरों ने यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारी शुरू किया और अपने घरों और गाड़ियों और दुकानों पर कौमी परचम लगाए गए हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। कश्मीर में भी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अख्तियार सोलंकी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कश्मीर शहर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। एक तरफ जगह जगह झंडे, झंडियां और बैजिस के स्टॉल सजा दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं और हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए झंडे, बैज और बहुत सारे झंडे घर में अपनी दुकानों की तरफ लगा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से नेमत जो हमें बुजुर्गों की मेहनत से मिली है वो है हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो आज़ादी की शक्ल में हमें मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं। इस साल तो हमारा जज्बा और जोश बढ़ चुका है। उसकी वजह है कि कश्मीर इंशाअल्लाह जल्द से जल्द, वो दिन दूर नहीं कि हम और कश्मीरी भाई एक साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी के हाथ में झंडा लहराया हुआ है। पाकिस्तानी झंडे के साथ एक और भी झंडा लहराया हुआ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं।
क्योंकि कोरोना वायरस है, फिर भी लोग मना रहे हैं जश्न आज़ादी। जो मुल्क की हालात ख़राब हैं तब भी आ रहे हैं, अपने मुल्क के वतन के लिए आ रहे हैं और अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। जोर दे जो ये खरीदारी चल रही है अपने वतन के लिए जज्बे से मना रहे हैं। शहरों का यही कहना था कि 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी कौमी ईद की तरह मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़ कश्मीर। हर साल की तरह इस साल भी अहमदपुर के शहर चन्नीगोट में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट। अहमदपुर शहर के शहर चन्नीगोट में भी 14 अगस्त करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सब्ज परचम हिलाली के स्टॉल सजा दिए गए। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोश और खरोश से मनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने रुख कर लिया है सब्ज परचम हिलाली के स्टॉल का, जहाँ पर बच्चे और बड़े पाकिस्तानी झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह शहर इलाहाबाद के शहरी भी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हैं। मार हबीब की रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरह इलाहाबाद के शहरी भी जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। बाजारों में नौजवानों और बच्चों का रश, गली गली कूचा कूचा में सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल सज गए। पिछले साल की तरह 14 अगस्त की चीजें खरीदने आए हैं। 14 अगस्त बड़े जोश और जज्बे नाल मना रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चों ने वतन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी परचम के कपड़े, चश्मे और टोपियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह बड़ी जोशो खरोश नाल मनावांगे, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियां नाल हासिल होया है और सानू बड़ी खुशी है साढ़े वड्डियां ने कुर्बानियां देतियां और सानू ये मुल्क मिलिया। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। वतन अजीज के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी, इन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। कश्मीर से इजहार एकजहती करते हुए कश्मीर के झंडे की मांग में भी इजाफा हो गया है। 14 अगस्त मनाने की खुशी में इलाहाबाद के शहरियों की तैयारियां उरूज पर हैं। गलियां, बाजारों और घरों पर सबज परचम लहरा दिए गए। कैमरामैन तनवीर के साथ महर खुबैब जताला, सच न्यूज इलाहाबाद। मुल्क भर की तरह बहावलपुर के नवाही इलाके मुबारकपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जैसे जैसे आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, दुकानदारों की तो चांदी हो गई। दुकानों और स्टॉल्स को परचमों, झंडियों और दीगर सामान से ऐसे सजाया गया कि देखने वाले खरीदे बिना रह नहीं सकते। यासर नाज की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियों और बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हलाली परचम से सज गए। शहर की गलियों और इमारतें और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चे, नौजवान और खवातीन खरीदारी में मसरूफ है। आज़ादी के जश्न को पहले से शानदार अंदाज से मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए अपने घरों वगैरह को सजाने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के अशिया खरीदने में मसरूफ है। पाकिस्तानियों को दिल से एक ही आवाज आ रही है, दिल दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान। दूसरी तरफ दुकानदारों को कहना है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। जहां शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, वहां देहात के बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने में किसी से पीछे नहीं। कबीरवाला में बच्चे अपने कच्चे पक्के मकानों को रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सजाने में मसरूफ हैं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन। जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा जहां वतन अजीज के छोटे बड़े शहरों के नौजवानों और बच्चों में बदर्जा उत्तम पाया जाता है। जहां आज़ादी स्टॉल्स पर बच्चे अपनी मनपसंद आराइशी अशिया की खरीदारी में मसरूफ अमल हैं, वहीं देहात के बच्चों में भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तवज्जुह से जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने में किसी से भी पीछे नहीं और अपने घरों की कच्ची पक्की दीवारों और मकानों की छतों को रंग बिरंगी और सब्ज हिलाली झंडियों से सजाने में मसरूफ अमल हैं। हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, जिससे हमने झंडे और झंडियाँ खरीदी हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। मैंने अपने अबू से पैसे लेकर ये झंडियाँ खरीदी, मैंने अपने घर को सजाया है। तो कहीं गांव के बच्चे और बच्चियों की टोलियां सब्ज हिलाली झंडियों को बड़े इनहमाक से एक ही धागे की लड़ी में परोकर इजहार यकजहती का नमूना पेश किए हुए हैं।
कोई मकान की बालकोनियों और छतों से सब्ज हिलाली परचम लहराकर जश्न आजादी की तैयारियों में मसरूफ है, तो कहीं देहात की गली महलों और सरसब्ज जमीन की गोद में अटकेलियां करते बच्चे कतार अंदर कतार सब्ज हिलाली परचम लहराए अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। मुल्क की हालात जिस कदर मुश्किल क्यों न हो, जिंदा कौमों के अफराद अपने वतन का जश्न आजादी पूरे मिली जोश व जज्बे से मनाते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को तख्लीक हुए आज 73 साल मुकम्मल हो गए। नवीद इकबाल की रिपोर्ट। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। सब्ज हिलाली सफेद कपड़े पर जब चांद और तारा बना दिया जाए तो यह पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान सब्ज हिलाली परचम कहलाता है। आज 11 अगस्त परचम की तख्लीक के दिन की मुनासबत से डस्का में हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। डस्का के शायरी परचम की शान पर क्या कहते हैं? परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है। हमारा परचम सब्ज हिलाली परचम हमारी शान, हमारी आन, हमारी जान है। मुझे अपने परचम पे बहुत नाज है, ये हमारी जान है। पाकिस्तान का कौमी परचम पाकिस्तान के आजाद होने से 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली में अपनाया गया। पाकिस्तान के परचम को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हदायत पर जब अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिजाइन किया तो वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने झंडे में रद्द बदल करते हुए इसे बरतानिया से मंसूब करने की कोशिश की, लेकिन कायदे आजम ने यकसर मुखालफत की और अमीरुद्दीन के डिजाइन करदा झंडे को ही पास किया और इसे फौरी तौर पर मास्टर अल्ताफ हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किया और इसे दस्तूर साज असम्बली में 11 अगस्त 1947 को लियाकत अली खान ने लहराया। आज परचम की तख्लीक को 73 साल मुकम्मल हो गए। सब्ज हिलाली परचम हमारी जान है, हमारी पहचान है। मुझे पाकिस्तान के झंडे से प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीके पाकिस्तान के अहम और सरगर्म हीरोज अमीरुद्दीन कुदवाई और मास्टर अल्ताफ हुसैन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। कसूर में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज बरवत और डिप्टी कमिश्नर मंजर अली जावेद की ज़ेर सदारत क़यादत में शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले पुलिस की भारी नफरी और जिले इंतजामिया के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी हुकूमती फैसले के मुताबिक रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए, जहां SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। इरफान गुज्जर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की गई है। आज से हम रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं मुकम्मल SOPs के साथ। हमने जो भी SOPs गवर्नमेंट ने भेजी है उनको फॉलो किया है और गैदरिंग जो हमारी फर्ज करें 100 की थी उनको हमने 50% में कन्वर्ट कर दिया है। इंटरेस्ट पे हम बाकायदा कस्टमर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, प्रॉपर स्टाफ को हाइजीनिकली और मास्क कैप्स वगैरह के साथ जा रहे हैं और लोग स्टाफ खास करके काफ़ी खुश है कि 5 महीने के बाद वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि तवील बंदिश ने कारोबार को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमती फैसला खुश आइंदा है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। लॉकडाउन और कोरोना के बहाव के बंद होने की वजह से जो रेस्टोरेंट बंद हो गए थे अब वो खुल गए। हमें इंतहाई खुशी है कि हम यारशाह होटल में खाना खाने के लिए आए हैं और इधर हमने एंट्री के लिए SOP के साथ उठाया गया है। सैनिटाइजर वगैरह टेबल पे रखे हुए हैं, हमारा टेम्परेचर वगैरह चेक किया। हमें खुशी है कि ये इधर रेस्टोरेंट खुल गए हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर को इख्तियार करने के लिए हुकूमत ने तमाम कारोबारी मराकज को SOP से मशरूत कर दिया था। कोरोना वबा में कमी के साथ ही रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है। कैमरा टीम के साथ इरफान गुज्जर, सच न्यूज, सियालकोट। लॉकडाउन से जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं चित्राल में शहद का कारोबार करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। शहद न सिर्फ तवानाई से भरपूर ग़िज़ा है बल्कि इसमें मुख्तलिफ बीमारियों के लिए शिफा भी है। ये शहद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर शहद की मक्खियों के जरिए तैयार होता है। जंगल में भी कुदरती तौर पर पाया जाता है, मगर आजकल इसे फार्म के अंदर मक्खियों के जरिए तैयार करवाया जाता है। लकड़ी से बने हुए संदूक नुमा पेटियों में इन शहद की मक्खियों को पाला जाता है और ये पेटियां ऐसी जगह रखी जाती हैं जहां आसपास दरख्त और पौधों में फूल मौजूद हों, क्योंकि ये शहद की मक्खियां इन फूलों का रस चूसकर पीती हैं और इससे शहद बनता है। 1 माह बाद इनको पेटियों से निकालकर एक खास मशीन में डाला जाता है और इसे तेजी से घुमाकर हवा के दबाव से शहद निकाला जाता है। इसके बाद इनको मुख्तलिफ बर्तनों में पैक करके बेच दिया जाता है। कोरोना से जहां दीगर कारोबार मुतासिर हुए, वहीं शहद की सनत को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। बस
बस इस मुश्किलात का सामना है कि यार इस साल पर ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना हमारा कारोबार बहुत ज्यादा खराब हो गया। बस ये होना चाहिए कि वो कर्जे का ऐलान करे कि यार ये मक्की वालों को कर्जा दे तो अच्छा होगा। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी माली मामलत की जाए और बिलासूद कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी होने लगी। हुकूमती लिहाज से साहिवाल शहर को कोरोना फ्री सिटी करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं तशाम अली की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की मेहनत रंग ले आई। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीईओ हेल्थ अजहर नकवी और डॉक्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने में हरावल दस्ते का काम किया और आखिरकार इनकी मेहनत का समर इनको साहिवाल कोरोना फ्री सिटी मुंतखब होने पर मिल गया। इस मौका पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जहद कमाल सिद्दीकी का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल में कोरोना की वबा ना होने के बराबर रह गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव मरीज अभी हॉस्पिटल में तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो हमारी दरख्वास्त है आवाम से कि वो एहतियात जारी रखें, जिसके अंदर मास्क का इस्तेमाल, हाथों को बार बार धोना और क्राउडेड जगहों पे, रश वाली जगहों पे जाने से परहेज करना है। अगर ये इन्होंने जारी रखा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान से कोरोना जल्द ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन श्री मुगल के साथ मलिक इत्शाम अली, सच न्यूज साहिवाल। अटक की तहसील हजरों में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। शजरकारी मुहिम में सैकड़ों की तादाद में टाइगर फोर्स के नौजवानों की ने शिरकत की। इस मौका पर वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने टाइगर फोर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। मालागंज डिवीजन में भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। लोअर दीर पिशनहर चकदरा में सूबाई हुकूमत के अहकामात पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह तहसील म्युनिसिपल ऑफिसर सफीउल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाकर आगाज कर दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, हर इंसान को अपने हिस्से का एक दरख्त लगाना चाहिए। चकदरा और मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में दरख्त लगा चुके हैं और मजीद भी लगाएंगे। दरख्त लगाने से ग्रीनरी में भी इजाफा होगा और ये इलाके सयाहती मकामात में सबसे आगे है, जिससे इन इलाकों की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इससे जंगलात को फरोग मिलेगा, सयाहत को फरोग मिलेगा। इसके बहुत से प्रोज एंड कॉन्स है, वो तो आप लोगों को पता है। और मैसेज मेरा यही है लोगों को कि इस प्लांटेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान इससे मुस्तफीद हो, हमारे एनवायरनमेंट इससे मुस्तफीद हो। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क सरसब्ज और शादाब नजर आए, जिससे कुदरती आफात में भी कमी आएगी और मौसम भी खुशगवार होगा। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास, सच टीवी, मालाकंड। मुल्क भर की तरह जिला बन्नू में भी 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। जिला बन्नू में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौके पर कशुपुल एरिया में सूबाई मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान, MPA मलिक पख्तूनियार, कमिश्नर बन्नू डिवीजन शौकत अली यूसुफजई और डिप्टी कमिश्नर जुबैर खान नियाजी ने पौधे लगाकर टाइगर फोर्स डे का आगाज कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर बन्नू डिवीजन शौकत अली यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारी दुनिया में मतलब एक क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली के नाम से एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को मीट करने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक टूल है वो है प्लांटेशन एफॉरेस्टेशन के अलावा क्लाइमेट चेंज का कोई हल हमारे पास है नहीं। बहुत से और भी साइंटिफिक टेक्निक्स है, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए मतलब प्लांटेशन के अलावा इसका कोई और हल है नहीं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुबैर खान नियाजी का कहना था कि जिली फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से जारी करदा 50,000 पौधे मौके पर लगाए, जबकि टोटल 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। टाइगर फोर्स इस जिले में है, तकरीबन 5,000 एनरोलमेंट है। उन सबको हमने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ये हमारे साथ काम में मसरूफ हैं। इस तरह आपने इधर देखा है कि 50,000 हम इधर प्लांटेशन कर रहे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। 2 लाख है वो बन्नू में आज की इंशाल्लाह डेट में हम अचीव कर लेंगे। टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे जिली फॉरेस्ट ऑफिसर वहदत जीशान, TMA डोमेल मोहम्मद यूसुफ खान और WSCC के CEO तकीर हुसैन और दीगर अहलकारों ने भी शिरकत की। सलमान खान, सच न्यूज, बन्नू। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भी सवात के इलाके ब्रिकेट में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर की तरह स्वात तहसील बरीकोट में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें नवागई के मुकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट सईदुल्लाह जान ने प्लांट पार पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह पौधा लगाकर किया।
तकरीब में पाक आर्मी, पुलिस अफसरान, महकमे पारस, TMA बरीकोट और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। दरख्त लगाना जैसे आप सबको पता है कि सदका जारिया है और इससे जो सॉइल इरोजन में कमी आएगी और जंगलात जो हमारे पहले बहुत ज़्यादा थे वो दोबारा इंशाअल्लाह हम उगाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट सईदुल अजान ने इस मौका पर कहा कि पौधा लगाना सदका जारिया है, हर शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक पौधा लगाए। देखें, पैगाम बिल्कुल सिंपल है, दरख्त लगाना जो है वो सदका जारी है। आप दरख्त लगाएं मैक्सिमम, क्योंकि ये जो है ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली जो है ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक फिनोमेना जो है वो चल रहा है और क्लाइमेट चेंज को जो है वो कम्बैट करने के लिए जो है वो ये शजरकारी या एफॉरेस्टेशन मुहिम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की तदारुक और कौमी खुशहाली का सबब बनती है। दरख्त लगाने से आलमी सतह पर बढ़ती हुई दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर की तरह स्वात तहसील बरीकोट में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, असिस्टेंट कमिश्नर बरीकोट और टाइगर फोर्स ने हिस्सा लिया। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट स्वात। चित्राल में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी मानसून मौसम की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में चित्राल एयरपोर्ट के पास रिवर बेल्ट में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चित्राल मेहमान खसूसी थे। इस मुहिम में खसूसी तौर पर टाइगर फोर्स ने भी शिरकत की। शजरकारी मुहिम में डिप्टी कमिश्नर चित्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल, चित्राल स्काउट्स के कर्नल आबेद, पाक फौज के मेजर रियाज और दीगर मेहमानों ने पौधे लगाए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चित्राल शौकत फयाज ने इस मुहिम के बारे में अपनी ख्यालात का यूं इज़हार किया। इस मुहिम में एयरपोर्ट के करीब 8000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि दरोश, बोनी, लासपुर और अपर चित्राल में भी पौधे लगाए जाएंगे ताकि मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सके। वाज़ेह रहे कि दरख्त न सिर्फ हमें ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करता है बल्कि सैलाब की शक्ल में हमें कुदरती आफात के नुकसान से भी बचाता है। गुलाम फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। कमालिया में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत 13,000 पौधे लगा दिए गए। कमालिया में वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम इलाका 728 गाबे में MNA रियाज फतेहाना, सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना, DC आमना मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफान हजरा समेत टाइगर फोर्स ने 18 एकड़ मुहित रकबा पर 13,000 पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर का कहना था, दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना हर शहरी का फर्ज है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के साथ साथ मौसम को खुशगवार बनाने में मददगार साबित होते हैं। जबकि सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि दरख्त को लगाने के साथ साथ उनकी मुनासिब देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधे लगाकर मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M5 के ज़ेर एहतमाम हादसात रोकने के हवाले से तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। शुजाबाद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M5 के ज़ेर एहतमाम हादसात रोकने के हवाले से तरबियती मशक का इनेकाद किया गया। तरबियती मशक में मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने शिरकत की। जबकि इस हवाले से DSP मोटरवे पुलिस मोहम्मद फैसल का कहना था कि कॉल मसूल होती है कि एक मिनी मज़दा जो है वो इस लोकेशन के ऊपर हिट हुआ है और उसमें ऑयल लीकेज भी हो रही है और बंदे भी जख्मी है, जो ड्राइवर साथ क्रू होता है उसका। रेस्क्यू 1112 को कॉल किया ताकि जख्मियों को जो है वो फर्स्ट एड पहुंचाई जा सके। उसके साथ साथ चूँकि जो उसकी फ्यूल लीकेज थी उसमें आग लगने का खदशा था, तो उसके पेश नज़र जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल किया। डॉक्यूमेंटेड हालत में उनके हमने हैंड ओवर किया और ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके हमने गाड़ियों को रिकवर करवा के रिकवरी अपनी वैन्स के जरिए और रोड को क्लियर कर दिया। जबकि इस हवाले से रेस्क्यू 1122 का कहना था कि एक्सीडेंट की सूरत में या आग लगने की सूरत में तो एक्सरसाइज का मुजाहरा किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट से निपटने, मरीजों को फर्स्ट एड देने, उनको शिफ्ट करने, इसके अलावा आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने और तमाम कार्रवाई के लिहाज से तमाम महकमों के कोऑर्डिनेशन से एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। कैमरामैन मुबशिर उल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। मुल्क को सरसब्ज शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन जोर शोर से जारी और सारी है। वजीर आजम पाकिस्तान की मुहिम सरसब्ज पाकिस्तान के तहत लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 भी पेश नजर आने लगी। लोधरा में मोटरवे पुलिस की जानब से 1000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर CPO सैयद रिजवान शाह साहब का कहना था, इंशाअल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब और अपने सीनियर अफसरान की खसूसी विजन के मुताबिक इस कैंपेन में बहुत जोश व खरोश से हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान को जो सरसब्ज व शादाब बनाने की मुहिम है उसमें मोटरवे पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी।
زیادہ سے زیادہ پودے لگا کے ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ندیم عباس پیرزادہ، نمائندہ سچ نیوز، لودھراں۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ کوٹ سلطان میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ دن دہاڑے نقاب پوش قبضہ مافیا گروہ کے ارکان بلال گربانی کے گھر میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے داخل ہوئے اور خواتین پر تشدد کرتے ہوئے دھاوا بول دیا اور رہائشی مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تشدد کے باعث 1 سالہ معصوم بچے کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ شور شرابہ پر علاقہ مکین جمع ہو گئے، جن کی مداخلت پر ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری محمد بلال اور عینی شاہد خاتون نے بتایا کہ قبضہ خوان سارے گھر دیتے ہیں کہ حملہ کتنے بچے کو مارا تو جو کتنے عورتیں زیادتی کتنے سارے کپڑے پاڑ دیتے بچے جی ماں بہن دیتے سارے محلہ جتنی کرنے رہ گئے بہت سارے زیادتی دے گی ہے۔ بچے سب تشدد کیتے نے، بہت ظلم کیتے نے۔ اسیں ظلم دے خلاف ہی سے جڑے ظالم لوگ انہیں دے گھر گھسن اور اپنے انجام کو پہنچن۔ ڈی پی او لیا وزیر اعلیٰ پنجاب میں انہیں کو التجا کرنی انہیں انصاف کیتا بنے۔ متاثرین و علاقہ مکینوں نے قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ارباب اختیار سے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ملک ندیم کے ہمراہ صداقت علی خان، سچ نیوز، کوٹ سلطان لیا۔ سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو شہر شہر سراہا جا رہا ہے۔ نیکی کی ٹوکری جو اللہ شروع کر رکھا ہے یہ بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کو بہت ان کا اجر دے گا اور ان کو کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ہم سب کو مل جل کے حصہ دینا ہے۔ سچ ٹی وی نے جو مہم شروع کی ہے نیکی کی ٹوکری، یہ قابل تعریف ہے اور جتنی بھی عوام ہے یہاں کے لوگ ہیں اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ جو غریب عوام ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ سچ ٹی وی کی طرف سے نیکی کی ٹوکری کا جو سسٹم کیا گیا یہ قابل تعریف ہے۔ اس میں سفید پوش انسان کی جو مدد ہوتی ہے اور ہم اس چیز میں سچ نیوز والوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سچ نیوز کی طرف سے جو نیکی کی ٹوکری کا مختلف تندوروں کے اوپر انتظام کیا گیا یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت اور ترقی عطا فرمائے۔ اس سے غریب لوگوں کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے۔ سچ نیوز کے اس احسن اقدامات کو سراہتے ہیں جو انہوں نے مختلف تندوروں پر نیکی کی ٹوکری کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوگی۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔